چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن ہو. ہم پاکستان میں اب الیکٹرانک ووٹنگ لانے لگے. ہم اب یہ چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈز ہو, سب کے سامنے پتہ چلے کہ کون سی پارٹی کے لوگ کس کے لیے ووٹ کر رہے ہیں. کرپشن ہے یہ سارے سینٹ کے الیکٹرل پروسیس میں, یہ ختم ہو. وزیر اعظم عمران خان کا ملک میں الیکٹرانک ووٹنگ لانے کا اعلان. سینٹ میں سیکرٹ بیلٹ کا خاتمہ کر کے شو آف ہینڈ لانے کے لیے پرعزم. انتخابی اصلاحات کے لیے اپوزیشن کو دعوت. انتخابی عمل پر گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا 2013 میں تمام جماعتوں نے دھاندلی کا الزام لگایا. چاہتے ہیں ایسا نظام ہو جو الیکشن ہارے وہ تسلیم کرے. ملک میں الیکٹرانک ووٹنگ کا نظام لائیں گے. تارکین وطن کے لیے بھی ووٹ ڈالنے کا سسٹم لا رہے ہیں. سینٹ الیکشن کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. چاہتے ہیں سینٹ انتخاب میں کرپشن کا الزام نہ لگے. وزیر اعظم نے بھرپور اعتماد پر گلگت بلتستان کے عوام کا شکریہ بھی ادا کیا. کہا جی بی کے عوام سے کیے گئے وعدے پورے کریں گے, پوری صوبہ بنائیں گے. حکومتی اعلان مسترد. پی ڈی ایم کا جلسے شیڈیول کے مطابق کرنے کا اعلان. مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت متحدہ اپوزیشن کی بیٹھک. گلگت بلتستان الیکشن کے نتائج کو رد کر دیا. سربراہ پی ڈی ایم نے کہا کرونا کی آڑ میں جلسوں کی پابندی کو مسترد کرتے ہیں. عوام کے بنیادی اور سیاسی حقوق پر تمام جماعتوں نے اتفاق کیا. حکومت دھاندلی کے عادی ہے, اب ان کا راستہ روکا جائے گا. حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کے حامی نہیں. موجودہ حکومت عوام کی نمائندہ ہی نہیں. فیصلہ کر لیا سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھجوانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. گلگت بلتستان میں ہار, بلاول اور مریم نواز میں رابطہ. دونوں کی الیکشن میں مبینہ دھاندلی کی مذمت. بلاول بھٹو بولے دھاندلی کے باوجود اپوزیشن نے حکومتی اتحاد سے زیادہ ووٹ لیے. یہ پی ٹی آئی کی عدم مقبولیت کا ثبوت ہے. جی بی کے عوام اپوزیشن کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں. دونوں کا جلد ملاقات کرنے پر بھی اتفاق. گلگت بلتستان میں آزاد امیدواروں سے رابطے کا ٹاسک علی امین گنڈا پور کے سپرد. رابطے بھی شروع. کابینہ اجلاس میں کامیاب انتخابی مہم چلانے پر علی امین گنڈا پور کے لیے ڈیسک بجائے گئے. حکومتی ذرائع کے مطابق جیتنے والے 4 آزاد امیدوار تحریک انصاف میں شامل ہونے پر آمادہ ہو گئے. مراد سعید نے کہا جیتنے والے 7 آزاد امیدواروں میں سے 4 کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. ٹکٹس کی تقسیم درست ہوتی تو ہم 14 سیٹیں جیت سکتے تھے. حکومتی کیمپوں سے بھی مخالفین پر وار. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں بلاول بھٹو کے جذباتی بیانات منطق اور حقائق سے عاری ہیں. اپوزیشن کو الیکشن کے بعد اپنی شکست تسلیم نہ کرنے کی بری روایت چھوڑنا ہوگی. ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگانے والے گلگت بلتستان کے عوام کے ووٹ کو عزت دینے کو تیار نہیں. جمہوریت کا لیکچر دینے والے جمہوری طرز عمل اپنائیں. معاون خصوصی شہباز گل بولے پی پی چیئرمین نے ٹوپیاں پہنانے, مریم نے کرپشن کو بیچنے کی کوشش کی. عوام نے ان کی کرپشن کو یکسر مسترد کر دیا. پیپلز پارٹی کا جی بی الیکشن کے نتائج کو چیلنج کرنے کا اعلان. نفیسہ شاہ اور شہلا رضا کی پریس کانفرنس. کہا پی ٹی آئی 10 سیٹیں کیسے جیتی سب جانتے ہیں. الیکشن عمل اور نتائج کو مسترد کرتے ہیں. جی بی الیکشن میں ہر پہلو سے دھاندلی کی گئی. 6 ماہ پہلے تحریک انصاف کا جی بی میں کوئی امیدوار نہیں تھا. پی ٹی آئی کو زبردستی سیٹیں ملی ہے. حکومت کورونا کا خوف پھیلا کر جلسوں سے نہیں روک سکتی. شکست تسلیم کرنے کے لیے بھی ظرف کی ضرورت ہوتی ہے. صوبائی معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کا جوابی وار. کہا بدترین شکست کے بعد اپوزیشن مانے یا نہ مانے فیصلہ عمران خان کے حق میں آیا. مسترد شدہ راج کماری اور بلاول تاریخی شکست پر ماتم کرنا ہے. کوئی ان کو سمجھائے کہ صرف وہی الیکشن شفاف نہیں ہوتا جس میں آپ جیتیں. اب یہ ووٹ کو عزت دیں اور حوصلہ کریں.
वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले, अरकान असम्बली के मसाइल के हल के लिए नया निज़ाम पेश। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा अरकान के इलाकों के मसाइल के लिए एक वाज़ेह तरीक़ाकार वज़ा किया गया। अरकान पार्लियामेंट की शिकायत बर वक्त हल न करने पर इंतजामिया और महकमों के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। काबीना अरकान को ब्रीफिंग में बताया गया मुल्क में गंदम और चीनी की कोई कमी नहीं, कीमतों में इजाफा नहीं होगा। कोरोना से बचाव की अशिया की इंपोर्ट पर ड्यूटी और टैक्स मुआफी की मंजूरी। काबीना ने पाकिस्तान मेडिकल अथॉरिटी के कयाम की मंजूरी भी दे दी। 19 लाख टन गंदम जल्द पाकिस्तान पहुंचेगी। इंपोर्टेड शुगर मार्केट में 83, यूटिलिटी स्टोर्स पर 68 रुपए फरोख्त हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज की ब्रीफिंग। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने बताया माजी के लिए कर्जों का सूद देने के लिए हुकूमत को 5000 अरब देने पड़े। गुज़श्ता 4 माह में मुल्क के कर्जों में 1% का भी इजाफा नहीं किया गया। मुल्क की एक्सपोर्ट्स रोज बरोज बढ़ रही है। ऐसी पॉलिसीज ला रहे हैं जिससे मुल्क के अंदर रोजगार पैदा हो। कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू, वबा मजीद 33 जानें निकल गई। एक दिन में 2050 नए केसेस। महकमा तालीम सिंध का स्कूल्स बंद न करने का ऐलान। कहा तालीमी इदारों में रवा बरस मौसम सरमा की तातीलात नहीं होंगी। कोरोना के बायस पहले ही बहुत ज्यादा छुट्टियां हो चुकी। बलूचिस्तान हुकूमत का 1 दिसंबर से मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। तुर्बत में जलसा भी मनसूख। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के 2 टीचर्स और 8 तलबा के कोरोना पॉजिटिव। मुतासरा अफराद को घरों में भिजवा दिया गया। आजाद कश्मीर हुकूमत का 21 नवंबर से 6 दिसंबर तक लॉकडाउन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना की 3 घंटे तवील बैठक। चीनी के निर्खों में मजीद कमी में मौसर इक़दाम जारी रखने का फैसला। मजीद दरामदी चीनी की खरीदारी के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। गन्ने के काश्तकारों को बरवक्त और पूरा मुआवजा देने का हुक्म। इजलास में 2 वज़रा की सरजनिश। उस्मान बुज़दार बोले मुझे कहा जाता है वज़ीर आला बनकर दिखाओ, अब सीएम बनकर दिखाऊंगा। जो लोग बाहर बैठकर साजिशें कर रहे हैं सब मालूम है। फिरदौस आशिकावान कहती हैं अवाम को दरपेश महंगाई से निजात के लिए काबीना को तवील ब्रीफिंग दी गई। बर वक्त अदायगी ना करने वाली शुगर मिल्स को सील किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की इसराइल को तस्लीम करने से मुतालिक पाकिस्तान पर दबाव की खबरों की तरदीद। कहा वज़ीर आज़म 2 टोक अल्फाज में पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह कर चुके हैं। फ़लस्तीनी अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक मसले का मुनसिफाना हल तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। तोशाखाना के सरकारी तहाइफ की खुफिया नीलामी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हुकूमत का ये हाल है, अंधा बांटे रेवड़ियां और अपनों को दे। क्या ये आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी नहीं? क्या ये शफाफ बिडिंग है? क्या ये सब कुछ सिविल ब्यूरोक्रेसी लेने की हकदार है? क्या इस मुल्क में बाकी लोग कीड़े मकोड़े हैं? ये आइन किस मर्ज की दवा है? मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। ATC में पेशी। दूसरे मुलजिम शफकत को भी शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया गया। हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन का दूसरा रोज ऐवान वज़ीर आला में नातिया महफिल का एहतमाम। मुख्तलिफ जुबानों में शायरों ने गुलहाए अकीदत पेश किए। हाजरीन नातिया कलाम पर दादो तहसीन पेश करते रहे। कलाम इकबाल का इंग्लिश और फ्रांसीसी तर्जुमा भी पेश किया गया। उस्मान बुज़दार बोले पूरे सूबे में तकरीबात जारी हैं और ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश करना एजाज है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने नातिया मुशायरे के इख्तिताम पर शोहरा से मुलाकात की और खिराज तहसीन पेश किया।
पंजाब यूनिवर्सिटी का एक और आलमी एजाज, 3 प्रोफेसर्स दुनिया के बेहतरीन 2% मुहक्किकीन में शामिल। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया के बेहतरीन मुहक्किकीन की फहरिस्त जारी कर दी। पंजाब यूनिवर्सिटी के डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के डॉक्टर खालिद महमूद, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस डॉक्टर मोहम्मद शरीफ और शोबा रियाजी के डॉक्टर मोहम्मद अकरम भी दुनिया के बेहतरीन 2% मुहक्किकीन में शामिल हो गए हैं। इंतहाई गैर जिम्मेदार शहरी का चालान कट गया। लाहौर में मोटरसाइकिल पर 9 बच्चे बिठाने वाले शहरी को वार्डन ने रोक लिया, 300 रुपए का चालान थमाया। गफलत और लापरवाही बरतने पर टिकट काटा। कुछ दीगर खबर शामिल करते हैं। हम खबर देंगे आपको, वजीर आजम का मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने का ऐलान। सेनेट में सीक्रेट बैलेट का खात्मा करके शो ऑफ हैंड लाने के लिए पुरअज़्म। वजीर आजम ने इंतखाबी इस्लाहत के लिए अपोजिशन को दावत दे दी। अहम और बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, वजीर आजम का मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने का ऐलान। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन हो। हम पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने लगे। हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी एक सिस्टम लेके आ रहे हैं ताकि वो भी अपनी वोट डाल सकें। इस्लामाबाद में इंतखाबी अमल के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में सीक्रेट बैलेटिंग का खात्मा चाहते हैं। हम अब ये चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड्स हो, सबके सामने पता चले कि कौन सी पार्टी के लोग किसके लिए वोट कर रहे हैं। इससे ये होगा कि जो पैसा चलता है और ये जो करप्शन है, ये इस सारे सेनेट के इलेक्टरल प्रोसेस में ये ख़त्म हो। 2018 में हमने अपने 20 MPs को पार्टी से निकाला, जो हमारे ख्याल में हमारी कमेटी बैठी और कमेटी ने हमें ये रिपोर्ट दी कि इन MPs ने पैसे लेके अपनी वोट बेची है। वजीर आजम ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के दौरान आवाम के नज़्म ज़ब्त की भी तारीफ की। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से वादा करता हूँ कि प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस जो UN की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के बीच पे रह के हम लेके आए हैं, उसके ऊपर हम अब पूरी तरह अमल करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने इंतखाबात में भरपूर एतमाद करने पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। वफाकी काबीना ने कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 61 अशिया पर टैक्स और ड्यूटी की छूट देने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम इमरान खान बोले, अरकान पार्लियामेंट की शिकायत बर वक्त हल ना करने पर महकमों के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तफसील बता रहे हैं रिजवान अहमद गिलज़ई। वफाकी काबीना ने कोरोना के मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले 61 अशिया पर टैक्स और ड्यूटी की छूट देने की मंजूरी दे दी। मुल्क के 19 अजला में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कानूनी इख्तियारात तफवीज़ करने की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अरकान पार्लियामेंट की शिकायत बर वक्त हल न करने पर इंतजामिया और महकमों के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। काबीना को बताया गया कि मुल्क में गंदम और चीनी की कोई कमी नहीं। रबी फसल खुसूसन गंदम के लिए वज़ीर आज़म इमदादी पैकेज की मंजूरी भी दी गई। पूरी तरह से हुकूमत कोशिश कर रही है कि जो बुनियादी अजनास हैं जिसमें चीनी और आटा हैं, तो अल्लाह ताला के फजल से ये सब अंडर कंट्रोल हैं, स्टॉक वाइज भी और कीमतों में भी। आपको मज़ीद नीचे इसका रुझान देखना पड़ेगा। इमरान खान साहब की हुकूमत को 5000 अरब रुपए देने पड़े। माजी के जो कर्जे लिए गए थे उनकी सूद पर जून 30 से लेकर अक्टूबर 30 तक पाकिस्तान के जो कर्जों की तादाद है उसमें 0 का इजाफा है। इजलास में वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने पर अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद और जुल्फी बुखारी की तारीफ की। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज रद्द कर दिए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात के हामी नहीं। कोरोना की आड़ में जलसों पर पाबंदी को मुस्तरद करते हैं। PDM ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज रद्द कर दिए। PDM ने जलसे जुलूसों पर पाबंदी के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। कोरोना की आड़ में जो जलसों पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है, हम हुकूमत के फैसलों को मुस्तरद करते हैं
और PDM के जलसे शेड्यूल के मुताबिक इंशाअल्लाह होकर रहेंगे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास में चार्टर ऑफ पाकिस्तान तैयार करने के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी में एहसन इकबाल, शेरी रहमान, रजा रब्बानी, खुरम दस्तगीर और मुर्तजा कामरान शामिल होंगे। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। ये धांधली के आदी हैं, ये इस तरीके से अरकान को प्रेशराइज करना चाहते हैं और ये नहीं चलेगा, उसके लिए भी हम इंतजाम कर रहे हैं। हम हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, आवाम की नुमाइंदा ही नहीं है। PDM के रहनुमाओं का कहना था हुकूमत के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। हम खबर दें आपको, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज में टेलीफोनिक राब्ता, दोनों की इलेक्शन में मुबैना धांधली की मजम्मत। बिलावल भुट्टो बोले धांधली के बावजूद ऑपोजिशन ने हुकूमती इत्तेहाद से ज्यादा वोट लिए। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज का जल्द मुलाकात करने पर भी इत्तेफाक। बिलावल और मरियम नवाज में राब्ता हुआ। GB इलेक्शन में मुबैना धांधली की मजम्मत की गई। धांधली के बावजूद ऑपोजिशन ने हुकूमती इत्तेहाद से ज्यादा वोट लिए, ये कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर आपको दें। गिलगित बल्तिस्तान के आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते का टास्क अली अमीन गंडापुर को मिल गया। राब्ते भी शुरू कर दिए गए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक जीतने वाले 4 आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में शामिल होने पर आमादा हो गए। मुराद सईद ने कहा कि जीतने वाले 7 आज़ाद उम्मीदवारों में से 4 का ताल्लुक PTI से है। टिकट्स की तकसीम दुरुस्त होती तो हम 14 सीटें जीत सकते थे। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 3 घंटे तवील इजलास हुआ। काबीना ने गन्ने की कम अज़ कम इमदादी कीमत 200 रुपए फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और शुगर केन डेवलपमेंट फीस की भी मंजूरी दी गई। इजलास में 2 सूबाई वज़रा की सरजनिश भी की गई। इजलास का अहवाल जानते हैं मियां असलम से। पंजाब काबीना ने गन्ने की कम अज कम इमदादी कीमत 200 रुपए फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और शुगर केन डेवलपमेंट फीस की भी मंजूरी दी गई। पास्को से आज 63,000 यानी 63,000 मैट्रिक टन जो दरामदी गंदम है वो खरीदने के लिए मुआहदा करने की इजाज़त दे दी है। वज़ीर आला पंजाब ने फिलफौर नाबीना अफराद की मुलाजमतों के 3% कोटे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हदायत जारी की है। मुआविन खसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिकाबान ने काबीना इजलास बारे ब्रीफिंग दी। अगली कैबिनेट मीटिंग जो हमारी होगी वो साउथ पंजाब में होगी और DG खान में होगी। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक इजलास में अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।